So if I can ask few of you to open your cameras so I can see you people. Thank you. Thank you. Thank you so much. So this is our first session, which we are going live on our page, our group on Facebook. So thank you everybody for being a part of this. And let us hope to do more of such sessions on Facebook. So let us begin with the prayer. Hands on your heart. Inhale slowly, exhale slowly. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my beloved Guru, Grand Master Chua Kok Sui, his Guru, Lord Mahaguruji Mailing, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi. All the holy Gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, Lords of Karma, Lord Shani, we invoke for your blessings. May this session be filled with lot of knowledge, illumination, intelligence. May each one of us get the answers for the questions or the answers we are looking for. Thank you all for being present here, guiding us, helping us, assisting us. Thank you in full faith. Thank you, angels of internet, for letting us have a smooth running session. Inhale the blessings. आत्मा नमस्ते एवरीवन. सो आज बात हो रही है शनि, जिनसे आधी दुनिया डरती है. शनि क्योंकि शनि कर्म के फल देने वाले हैं. तो अगर सिर्फ ये एक छोटा सा सेंटेंस हम समझ लें कि वो हु इज लॉर्ड शनि, ही इज द वन हु इज गिविंग अस द फ्रूट्स of the actions we have done in our past. As simple as that. तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो शनि बाउंड्रीज, शनि डिसिप्लिन, शनि कर्मों का फल देने वाले, वो शनि ऑन 23rd of May 2021 को रेट्रोगेट हो गए हैं. तो ये क्या फिनोमिना है, इसको कैसे समझे और कैसे ये 12 राशियों पे इफेक्ट लाएगा, इन सब की चर्चा मेरे गुरु, मेरे फादर डॉक्टर हनुमान सिंह जी वो करेंगे. वो हमें सब बताएंगे इसके बारे में. और हमने आज का दिन क्यों चुना, आज शिव जी का दिन है, प्रदोष का दिन है, उसके बारे में भी पापा बताएंगे. सो लेट मी वेलकम माय फादर हु इज माय गुरु. Shar, how long this class will continue? 1 hour? SJ, mostly it should be 1 hour, but I don't know. Okay. As per the knowledge it would go. Okay, thank you. Welcome. Papa, you can highlight your screen. बोलना तो 2 times you tap your screen, it will come. Not yet. Dakshina, Nikki, help Papa. He's not coming pura on the full screen. अब कैसे? नहीं, we cannot see you, Papa. I can see. You can see full screen. Yes, yes. Okay. No, now it has gone. Yes, we cannot. अब देख सकते हैं. It has gone again. Papa, click once, it will come. Yeah. The host has this. Now? Yeah, it's okay. Yes, Tushar, is it okay? No, I can't see you. Yes, now I can see you. Hold on. Now I can see you. Okay now? Yes, yes. Yes. Now carry on. हाँ.
तो सभी पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले जैसे तुषार ने भी अभी एक प्रार्थना पढ़ी और वो किया, तो मैं ज्योतिष में हमेशा एक चीज से शुरू करता हूँ। देखिए सुनिए, पहले तो करणी माता की जय, माँ महामाया नमः। ये हमारे इष्ट देवी हैं करणी माता, और महामाया है हमारी कुल देवी। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी का जब भी मैंने कोई कॉन्फ्रेंस में गया और वट एवर इट इज, तो आई हैव ऑलवेज सेड फलानी ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिण को वक्ता तारतम्यस्य तमेकम वेदशम विना. Those who know astrology can only indicate in a way what will take place in future. Who else except the creator Brahma can say with certainty what will definitely happen? I always live with one word. I am not God. Whatever I have studied, experienced, exposure on that, and mainly it is my logic based. On that, I always interpret the chart. It is not the forecast or predictions of. It's very, very simple scientific thing. Let us interpret the chart. So now today we are discussing about the retrogression of Saturn. Now, to start with, see, you should know, although I think Tushar has taken certain classes about this retrogression of what is retrogression and all that, but very hurriedly I'll repeat these things. ठीक है ना तुषार? Should I repeat ना? Hello. Yes, Papa, go on. And आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं. Majority people understand Hindi. ओके ओके, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड आएगा, कोई बात नहीं. Yes. हाँ, तो अपन रिट्रोग्रेशन की बात करें, वक्री की बात करें, तो देखिए जो भी सूर्य और चंद्रमा के अलावा जो भी प्लैनेट्स हैं वो हर साल रिट्रोग्रेड होते हैं, उनके मोशंस बदलते हैं. जैसे मूवमेंट होता है नॉर्मल, अपन जैसे फॉरवर्ड मोशन में जाते हैं, अपन भी सीधे सीधे चलते हैं, वैसे ही सारे ग्रह चलते हैं. Tushar, there are certain messages कि it's breaking and all that voice, and so who will control? You will control. See that? मुझे सही आ रही है पापा. It's good. It's good. Yes. Let me use these AirPods then. Everybody else can check at their end. मुझे बिल्कुल clear आ रही है आवाज. The voice is very clear. Yeah. So Papa, you can go on. Yes. तो उसमें ये है, it's okay. Rashmi has said it's okay, clear. Nikita also. Okay. So let's start with this. जैसा मैं ये कह रहा था कि भाई ग्रह होते हैं, उनमें सूर्य चंद्रमा को छोड़ दीजिए, बाकी सबके हर साल कुछ दिनों के लिए कोई स्पेसिफिक है ये कि भाई कौन से दिन कौन सा क्या है. तो जैसे सैटर्न की बात हो रही है, तो सैटर्न इज नॉर्मली 4 months. ये मैं आपको ये बता दूं, फॉरवर्ड मोशन होता है, मतलब आगे सीधा चलना होता है. एक होता है अतिचारी, एक्सेलरेशन, जैसा आजकल पिछले साल से और अगले साल तक चलेगा, वो है बृहस्पति, जो कि एक्सेलरेशन के कारण 1 साल का उसका ड्यूरेशन होता है, बट दैट विल कंटिन्यू फॉर 4 months. 4 महीने में बदल जाएगा, आगे जाएगा 4 months, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, ऐसा हो रहा है. एक होता है जिसमें कि नॉर्मल मोशन, एक होता है जिसमें थोड़ा स्टेशनरी, मतलब जिसको अपन कहें कि रुक गया है, और एक जिसकी आज अपन बात कर रहे हैं वो है रिट्रोग्रेशन. तो रिट्रोग्रेशन में क्या है, ये सब चीजें मोशन और एवरीथिंग, यू नो, यूनिवर्स में जो हमारा एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट है उसके अंदर सब ग्रह, हमारी अर्थ एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग, मतलब एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं. तो ये जितने भी मूवमेंट्स, मोशन ऑफ दीज प्लैनेट्स, मतलब इन ग्रहों के जो भी कुछ अपन बात करें, चाहे रिट्रोग्रेड की, वक्री होने की बात करें, चाहे सीधा चलने की, मार्गी की बात करें, ये सब होता है सूर्य से कनेक्टेड. जब शनि 120 डिग्री अपार्ट होता है
सूर्य से, उस समय ये रिट्रोग्रेड होता है और वापस 120 डिग्री के पास में पहुंचेगा तो फिर वो वापस मार्गी हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। यस, तो ये 23 मई को जैसा इस स्लाइड में आप लोग, तुषार दे कैन सी दी स्लाइड्स और हेलो, हाँ पापा, हाँ आप ये भी देख पा रहे हैं ना स्लाइड्स? तो यस यस, आराम से। yes, okay, so this is like this, and it's this time it's for 141 days, sometimes it is 144 days, sometimes it is less, and like 5-10 day difference may be there. And it's very clearly written in this slide. My daughters have helped me in this all, otherwise I would have taken a long time to explain to you, but it's very clear. और ये अभी वक्री चलेगा 11 अक्टूबर को, जब ये फिर सूर्य के 120 डिग्रीज के पास आ जाएगा। 4 राशि इधर और 4 राशि उधर, 30 डिग्रीज की एक राशि होती है, तो 4 राशि अभी दूर होता है या नजदीक होता है जब ये वक्री होगा और सीधा होगा। इस तरीके से ये मोशन कह लें या वक्रत्व कह लें या रिट्रोग्रेशन कह लें या सीधा कह लें, ये सारा मोशन है। उसके बाद में अपन आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें कि अब देखिए, अगर मैं थोड़ा 2 मिनट और ले लेता हूं आपका, कि ये सारा जो वक्री होना, और ये डेफिनेटली पिछली स्लाइड्स, पिछले कोई मैंने YouTube पे डाला था और तुषार ने आपको सबको बताया ही होगा कि बेसिकली शनि का इफेक्ट क्या है। शनि का इफेक्ट क्या है, जो मेरे जो भी इंटरप्रिटेशन कह लो, प्रेडिक्शंस कह लो, आज की जो बात है उसमें बेस क्या करेगा? बेस ये करेगा कि आपकी राशि से शनि कहाँ चल रहा है। जैसे अपन पहली राशि की बात करें, एक पहली राशि से आपको समझा देता हूं, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे मेष राशि की बात करें, तो मेष राशि के वो अभी राशि से 10th हाउस में चल रहा है, क्योंकि अभी मकर का शनि है। और एक इस वक्रत्व के साथ ये है, रिट्रोग्रेशन के साथ ये है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इतना रिट्रोग्रेड होता है कि राशि ही बदल जाती है। जैसे नेक्स्ट आ रहा है जून में, जब गुरु वक्री होगा, और जो गुरु आज कुंभ राशि में है वो वापस इतना ज्यादा पीछे आएगा कि मकर राशि तक पहुंच जाएगा शनि के साथ वापस, जैसे पहले था 7 अप्रैल के पहले। तो जैसे मैं ये कह रहा था, मेष राशि की बात करें तो वो 10th में चल रहा है। फिर शनि की दृष्टि आपको जरूर बताई होगी तुषार ने, कि एक तो 7th दृष्टि तो सबके ही होती है, एस्पेक्ट 7th हाउस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेयर इट इज प्लेस्ड, ठीक है ना। उसके अलावा स्पेशल, हाँ सर पापा, मैं और कह रही थी, देयर आर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारा नया लोग है। अच्छा, most of them are not my students, so okay, they may not be knowing it, okay, yeah. right, so we will just concentrate कि हर राशि के लिए one thing only, you know, कि मेष 10th house and what हाँ, okay. देखिए, उसमें मैं बता देता हूँ, आप लोग नए भी इसमें हो तो मैंने वो पहले बता दिया कि वक्री कैसे होता है, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, शनि की विशेषता ये है। देखिए, मोटे रूप से शनि 3 जगह इफेक्ट करता है। वैसे तो शनि ओवरऑल इफेक्ट करता है, लाइफ के हर एरिया को कवर करता है सेट, बट आपको ये बताऊं मोटे रूप से क्या है। जब शनि ने सूर्य को देखा, जो इनके पिता पर वो दुश्मनी थी, तो सूर्य को देखा तो सबसे पहले उन्होंने देखा तो उनकी स्किन और उस पे स्पॉट्स वगैरह आ गए। तो शनि कुरूपता देता है, मतलब अगलीनेस। देयर आर स्पॉट्स, जिनके शनि लगन में होगा तो उनके चेहरे पे कहीं न कहीं रंग से लेके या कोई कटवट कुछ जरूर होगा। नाउ द सेकंड थिंग, उन्होंने शनि देव ने सूर्य देव के सारथी को देखा, रथ जो चलाता है, रथ पे ही रहते थे हर समय सूर्य देव। तो सारथी नीचे गिरा, उनकी टांग टूट गई।
तो इट इफेक्ट्स ऑन द बोन्स एंड जॉइंट्स ऑल्सो। इसी के साथ मैं बता दूं कि जो वायु रोग होते हैं वो भी इसी से कनेक्ट हो जाते हैं। थर्ड, शनि ने उनके घोड़ों को देखा तो फिर वो घोड़े अंधे हो गए। तो शनि आईसाइट पे भी करता है, पर मैंने फर्स्ट सेंटेंस ये कहा था शनि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नहीं जिसको एग्जेम्प्ट करता हो, ये सारी जगह इफेक्ट करता है बहुत लंबी दूरी के लिए, बिकॉज इट्स ए स्लो मूविंग प्लेनेट। 2.5 साल मतलब 30 मंथ्स में ये एक राशि को ट्रेवल करता है, जबकि दूसरे जैसे सूर्य है वो 1 महीने में ही बदल जाता है, 30 डिग्री ट्रेवल कर लेता है। तो ये स्लो है, तो स्लो है तो कोई भी चीज चाहे अच्छा इफेक्ट चाहे बुरा इफेक्ट वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। नॉर्मली हमारी ये सोच समझ है कि जब हैप्पी टाइम होता है तो चाहे वो 5 साल का हो तो भी बहुत छोटा लगता है, और जब बुरा समय आता है, कमजोर आता है, वीक पीरियड आता है, जब फिर अरे इतना लंबा हो गया ये, बट इट इज लाइक दिस ऑन नाउ। शनि के साथ में ये मेन बट सब जगह काम करते हैं ये। और क्रोनिसिटी में मतलब आपको मैं वो डिजीजेस के नाम या जितने भी ये स्कैम और जो भी बहुत सारी चीजें होती है वो सुनाना नहीं चाहता, बिकॉज मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि आई कीप 101% कॉन्फिडेंशियलिटी। दिस इज माय फर्स्ट व्हेन आई एम डिस्कसिंग विद समबडी अबाउट देयर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। देन सेकंड, मेरे साथ में ये है कि मैं नेगेटिव चीज नहीं बताता हूँ, पर नेगेटिविटी आपकी कुंडली में भी कुछ खराब होगा, मेरे भी कुछ खराब होगा, कुछ अच्छा होगा, ये चलता ही है, पर उस नेगेटिविटी को मैं एड्रेस करता हूँ रेमेडीज, वो अपन लास्ट में बात करेंगे उसकी भी, रेमेडीज की भी। तो शनि इस तरीके से काम करता है, और शनि की अलावा जितने भी ग्रह हैं सब ग्रह की एक दृष्टि होती है, मतलब जहां वो आपकी जन्म कुंडली में पड़ा हुआ है, जिस घर में पड़ा हुआ है, जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज अलग अलग काम के लिए होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो, पर वो जिस घर में पड़े हैं उससे 7th हाउस को वो एस्पेक्ट करते हैं, और उसके अलावा 3rd को करते हैं और 10th को भी करते हैं। 7th is aspected by each and every planet including Rahu and Ketu also, but 3rd and जो 10th वाली है वो सूर्य के साथ शनि के साथ एडिशनल पावर है। और एक और जो शनि के साथ ही है वो चीज जुड़ी हुई, शनि की दृष्टि ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे शनि जिस स्थान पे बैठा है उसकी तो इतना नहीं है, बट दृष्टि इट इज मोर अबाउट दैट, कि उसकी जिस पे दृष्टि पड़ेगी वो ज्यादा खराब करेगा। तो मेरी तरफ से ये है वापस कि ये 7th हाउस को भी देखता है, पर उससे पहले ये 3rd हाउस को देखता है, जहां बैठा है वहां से 3rd, 7th एंड देन 10th हाउस। उसके बेस पे अभी मैं आपको बता दूंगा। तो एक तो मैंने आपको बताया कि इसका प्रभाव क्या, इफेक्ट क्या, आपकी लाइफ पे इफेक्ट क्या है जनरल वे। नाउ सेकंड मैंने ये बता दिया कि जहां बैठा है वहां से ये देखता है। अब आपके किस घर में ये बैठा होगा, अब अपन बात करेंगे, आपकी हॉरोस्कोप की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर राशि। तो अपन शुरू करते हैं मेष राशि से शुरू करते हैं। देखिए मेष राशि से ये 10th हाउस में बैठा हुआ है अभी, मेष राशि से 10th हाउस। अब 10th हाउस का एक है, सबसे पहले 10th हाउस है जॉब का, कैरियर का, कर्म का, आपका मतलब आप क्या करते हैं, क्या करेंगे, वो मेनली वो 10th हाउस है। और अब 10th के मैंने अलावा आपसे ये कहा था कि जहां बैठा है वहां से 7th है 4th हाउस। 4th हाउस है आपकी प्रॉपर्टी, माँ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। फिर ये देखेगा 3rd दृष्टि से 12th हाउस को, विच इज ए हाउस ऑफ प्लेजर, फैमिली प्लेजर, एक्सपेंसेस, इन सब चीजों के लिए होगा वो। तो ये लास्ट में 10th
मतलब ये 10th हाउस में बैठा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, राशि से 10th हाउस में बैठा है, पर अब इनकी 10th दृष्टि जो है वो 7th हाउस में, जो कि हाउस ऑफ पार्टनर। तो ये कहाँ इफेक्ट करेंगे? एक, जहाँ बैठे हैं जॉब वाइज, दूसरा जो मैंने आपसे कहा एक्सपेंस के लिए देखते हैं, या बेडरूम प्लेजर या फैमिली प्लेजर के लिए देखते हैं, दो। एक मैंने आपको 4th था उसका कहा, तो वो प्रॉपर्टी, माँ, आपकी हैप्पीनेस की बात, एक आपके पार्टनर। तो अब ये शनि मेष राशि वालों के लिए कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट तो देखिए, हैप्पी तो इस बार किसी के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, बट यस, फिर भी ये 10th हाउस में है, तो यू मे फेस चेंज ऑफ जॉब का, कुछ हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पर दृष्टि 4th हाउस में है, तो आपका थोड़ा मदर का भी ध्यान रखिएगा, आपकी हैप्पीनेस कम हो सकती है, और हेल्थ का भी मदर का ध्यान रखिएगा। और ये वक्री होगा ना, तो पीछे वाले घर को भी देखेगा। वक्री का मतलब पीछे, तो दैट विल बी एस्पेक्ट, मींस 9th हाउस आल्सो विल बी एस्पेक्टेड बाय दिस रिट्रोग्रेड सैटर्न। तो वो भाग्य का और पराक्रम का है, पर वहां पर आपके मतलब थोड़ा हो सकता है आपका स्टेटस तो ठीक हो, पर ये सब जो पार्टनर वाला, ये वो सब में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। ये एक और आपको मैं बता दूं, रिट्रोग्रेशन इज नॉट ए नॉर्मल मोशन और मूवमेंट। जैसे हमें कोई कहे कि पीछे जाओ बिना मुड़े हुए, आप पीछे चलेंगे, उल्टे चलेंगे, तो कैसा लगेगा आपको? कैसा, आप किधर चले जाए, इधर उधर, इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। बट इन सारे इफेक्ट को देखते हुए आपको वहीं पे ध्यान रखना है, एक मदर और इनका ये, और दूसरा आपके फैमिली लाइफ और उसका भी ध्यान आपको रखना है। और पार्टनर उसी में आ जाता है, थोड़े खर्चे भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तुषार, इज दैट ओके फॉर मेष? हाँ पापा। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं टॉरस की, मतलब वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में ये है अभी राशि से 9th हाउस में, राशि से 9th हाउस, भाग्य। तो दो चीजें साथ में है, एक इनका भाग्य इन्वॉल्व हुआ, एक उसके बिल्कुल सामने जो आपका 3rd हाउस होता है, जिसमें आपका स्टेटस, मान सम्मान, आपके क्या कुछ पॉपुलरिटी होगी, ये सारा उस घर से हम देखते हैं। और फिर ये 11th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो 11th हाउस इज हाउस ऑफ प्रॉफिट्स। तो आपके जो कुछ भी प्रॉफिट्स हैं वो थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, पर वो जो वक्री होगा तो वो 8th हाउस, देखिए वृषभ राशि को 2020 के 24 जनवरी को शनि का ढैया खत्म हो गया था। शनि का ढैया, शनि के एक होता है बड़ा ढैया, एक होता है 7.5 जिसमें 3 फेज होते हैं 2.5 साल के, एक होता है माइल्डेस्ट लघु कल्याणी ढैया कह लो अपने, छोटा ढैया। तो आप अभी अभी वृषभ राशि वाले अभी मतलब 24 जनवरी 2020 पे अपना शनि का ढैया निकाल के बैठे हैं, बट ये वापस थोड़ा सा उस शनि के ढैये का इफेक्ट आएगा। मेरी तरफ से ये है वृषभ राशि वालों को शनि की इस 141 डेज तक सारे उपाय शनि के करने चाहिए विदाउट फेल, क्योंकि उनकी हेल्थ, उनके पार्टनर की हेल्थ, ढैये का सारा इफेक्ट आ सकता है। उनके लॉसेज, उनके अगर इन केस इफ दे आर सर्विंग, जिसमें कि भाग्य इन्वॉल्व होता है, भाई भाग्य से जॉब और सब कुछ आपकी ग्रोथ और आपका स्टेटस बनता है, उन सब में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट जो ढैये का इफेक्ट था, जो 2020 की जनवरी से पहले का इफेक्ट था, वैसा अब नहीं होना है। आप इसलिए उपाय करेंगे तो उससे आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं मिथुन राशि की बात करते हैं, ठीक है? तुषार, आप मुझे बता देना अगर कोई एलोबरेट और कुछ करना हो तो। Yes, yes, Papa. What we will do, we will take first we take all the star, ये zodiac signs,
and then later once you tell the remedies and आज का प्रदोष का जो main पूजा के बारे में, then we will take questions. Okay. फिर भी I'll just confirm from you कि what is left या कोई चीज हो तो ठीक है। अब आता है मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि की अगर अपन बात करें तो भाई इनको अभी डरिएगा मत मेरे शब्दों से। देखिए मैं बता दूं आपके हर एक के ढैया आता है, 7:30 आती है और निकल जाती है। थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़े उपाय करने से ठीक भी रहता है, तो घबराइएगा मत। तो मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो उनको तो बड़ा ढैया चल रहा है अभी। अब बड़ा ढैया चल रहा है, वक्री हो रहा है, तो छिड़ गया शनिदेव, तो छिड़ गया। नॉर्मल तो मोशन है नहीं, मूवमेंट है नहीं। तो इसलिए मिथुन राशि वालों को बहुत 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 कॉशियसली रहना है। देखिए इसमें जब अपन रेमेडीज की बात करेंगे, और जैसा अभी तुषार ने कहा, आप बाद में क्वेश्चन रेज कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा कि हाउ टू प्लीज सेटर्न, हाउ टू कम आउट ऑफ इविल्स और टॉर्चर और द टेरिबलनेस ऑफ दिस सेटर्न बाय डूइंग सर्टेन रेमेडीज। अपने कैसे अपन कुछ उपाय करने से ठीक भी रहेंगे। तो इनके लिए ये है। और फिर इनका वो 10th हाउस को भी देखेगा, तो इसलिए वो सब मतलब जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां ये थोड़े थोड़े कमजोर करेगा। जैसे 2nd हाउस पे धन का घर है, वो भी कमजोरी करेगा। मेरे को रितिका ने पूछा है कि रेमेडीज फॉर मिथुन, प्लीज बियर विद मी। आपको तुषार ने अभी कहा है कि एंड में अपन सब क्वेश्चन आंसर में आपका सब जवाब दे देंगे, और मैं आपको रेमेडीज इस तरीके से बताऊंगा कि बहुत जनरल सी रेमेडीज होगी विच विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द जोडियक, सब राशियों में काम आएगी। कुछ स्पेसिफिक बता दूंगा बस, और क्या। तो मिथुन राशि के लिए यस, उनके लिए ये पीरियड हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट और मैं वर्ड तो हो सकता, क्योंकि मैं नेगेटिव बोल नहीं सकता हूँ। हो सकता का मतलब है कि दे शुड टेक फुल केयर। और कोरोना काल चल रहा है, शुड केयर फॉर द हेल्थ ऑफ देमसेल्फ, मतलब उनके खुद की भी हेल्थ देखें, उनके पार्टनर की भी हेल्थ देखें, और उनकी धन की हेल्थ भी देखें कि उनकी अर्निंग और ये सब में कोई दिक्कत नहीं हो जाए। जॉब वॉब कहीं अभी जैसे कई डिसीजन लेते हैं ना कि जॉब में मैं बदल लूं क्या, अभी ये टाइम नहीं है बदलने वाला। जैसे तैसे चल रहा है चल जाए। अगर वो हो गया कि इनएविटेबल है, बदलना ही पड़ेगा, वहां कंपनी छुड़वा रही है, तो फिर जल्दी से जल्दी सर्च करना भी साथ साथ में शुरू कर दीजिएगा। ये मिथुन। अब कर्क राशि की बात करते। कर्क राशि तो मेरी स्वयं की भी है। तो कर्क राशि में क्या है कि 7th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहा है, जो कि हाउस ऑफ पार्टनर है, और वहां से वो 9th को भी देखेगा, वहां से वो लग्न को भी देखेगा, मतलब हमारी फिजिकल बॉडी जितनी कुछ भी है उनको भी देखेगा, और वहां से वो हमारे जो हमारा 4th हाउस, हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, उसको भी देखेगा। तो इन सब चीजों में कर्क राशि वालों के लिए मेन जो ध्यान रखने वाली बात है, फिर वहीं आ जाते हैं अपन, हेल्थ ऑफ देमसेल्फ, मतलब अपनी खुद की हेल्थ, अपने पार्टनर की हेल्थ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि आपके लग्न को देख रहा है, तो आपकी बॉडी में कुछ भी दिक्कत है वो तो है ही है, हो सकती है। अगर आपकी कोई एलिमेंट चल रही है उसको प्लीज चेकअप करवाइएगा, टेक केयर ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब कोई क्रॉनिसिटी है कोई भी, स्पेशली रिलेटेड टू जिसमें कि बहुत लंबे पीरियड से चल रही है। उसके साथ में ही आपके ये कनेक्ट हो रहा है सामने, तो एक और भी योग बनता है जिसमें आपकी कोई इंसल्ट हो सकती है, आपका कोई ऐसा हो सकता है जिसमें कि थोड़ा अनईजी लगे आपको, यू मे फील अशेम्ड या ऐसा कुछ। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आइए सिंह राशि का। सिंह राशि की बात करें तो 6th हाउस में चल रहा है ये राशि से। ये फिर वापस रिपीट कर देता हूं, हम जो बात कर रहे हैं
इसमें सूजी मेनन आपने यू हैव सेड वर्गो इज कॉल्ड व्हाट इन हिंदी? कन्या राशि। अभी आपका टर्न आएगा नेक्स्ट। तो अभी अपन सिंह की बात कर रहे हैं, तो सिंह की बात कर रहे हैं, तो सिंह में एक साथ में और सुन लीजिए कि शनि और शनि के साथ जो ये क्रूर ग्रह कह लें, या अगर बहुत नेगेटिव बोलूं एकदम स्ट्रेट, तो ये जो पाप ग्रह है वो 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, इनमें जब हॉरोस्कोप में प्लेस्ड होते हैं, या इनमें जब वो राशि से जब इन ट्रांजिट, मतलब जैसे अभी चल रहे हैं, उनमें सब में वो अच्छे माने जाते हैं। देखिए बहुत अच्छा तो ये है कि सबसे अच्छा तो है 3rd हाउस, फिर 11th हाउस, फिर 6th हाउस। तो 6th हाउस सिंह राशि के चल रहे हैं, तो वो काफी हद तक सेफ है, वो काफी हद तक सेफ है। और उसमें एक ही चीज है सिंह राशि की, एक तो भाई ये शनि की शत्रु राशि, पिता की राशि है, बट सूर्य सिंह राशि के मालिक हैं सूर्य, और शनि सूर्य की बनती नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है। बट साथ में एक चीज और अच्छी है, भाई 6th हाउस में है, इसलिए दे आर फुल्ली सिक्योर्ड। पर एक चीज यहाँ भी जुड़ी हुई ध्यान रखने वाली बात है, आप क्योंकि नए हो तो एक चीज और बता देता हूँ, ये तो गोचर की बात हो रही है, जन्म कुंडली में भी अगर शनि 6th हाउस में है, तो आप लगन से लग्न और राशि, ये दो अलग अलग चार्ट होते हैं, एक होता है लग्न चार्ट, एक होता है राशि चार्ट। लग्न चार्ट बनता है जो आपके जन्म के समय बनता है, तो उस लग्न में लग्न चार्ट में भी अगर 6th हाउस में है तो और सब बढ़िया है, बहुत शत्रु अत्रु सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, और सब आपका मतलब आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, बहुत कुछ ग्रोथ मिलेगी आपको। शनि ग्रोथ भी बहुत अच्छी देता है, पर एक उनकी फिजिकल हेल्थ और एक उनकी फैमिली लाइफ, ये दो पे ध्यान रखने वाली, अदरवाइज देयर इज नथिंग। तो आप भी सिंह राशि पे गोचर कर रहे हैं, तो उनके जो मैरिड वाले हैं थोड़ा सा अपने फैमिली लाइफ या एक्सपेंसेस को देखें, अदरवाइज उनको बिल्कुल कोई चीज डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो बाद में भी, मतलब जैसे 7th दृष्टि से वहां देख रहे हैं, फिर 10th दृष्टि से 3rd हाउस को देखेंगे, तो वो भी 3rd भी वहां से कवर हो जाता है, और वो ठीक ही रहेगा। अब आता है अपने कन्या राशि की बात करें, तो कन्या में अभी 5th हाउस में चल रहा है। देखिए एक और यहाँ भी एक जुड़ी हुई बात बता देता हूँ, जो 5th हाउस होता है, जो 9th हाउस होता है, ये दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हाउस माने जाते हैं। एक है 5th हाउस जिसमें आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान, आप क्या करेंगे, और एक छोटा सा एलिमेंट ये भी है कि आप कितने धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं, आप ऊपर भगवान से, ईश्वर से कितना जुड़ पाएंगे। और 9th हाउस तो भाग्य का ही है। तो ये तो दो हैं अच्छे इस एरिया में, रिलीजियस एरिया में। वैसे ही दो अच्छे हैं जो अभी आएगी राशियां जिन पे वो जुड़े हुए हैं, वो है 2nd हाउस एंड 11th हाउस, वो धन और प्रॉफिट की है। तो कन्या राशि की बात करें, तो कन्या राशि में अभी ये जो शनि महाराज है वो 5th हाउस में है, पर 5th हाउस में ये जो पापग्रह वाले पोर्शन मैंने बता दिया, 3rd, 6th एंड 11th हाउस, तो कोई बहुत ज्यादा न तो यहाँ पर वो है ठीक, और 5th हाउस से देख के वो 8th हाउस पे दृष्टि जा रही है, वो भी कोई विशेष बात नहीं है। और अगर अपन उधर देखें 5th हाउस से, तो 11th हाउस में जो उनकी दृष्टि जा रही है, वो फिर भी आपको थोड़ा बहुत 7वीं दृष्टि से वो 11th हाउस को देख रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत ठीक है। धन के घर को देख रहे हैं, बट वो 2nd हाउस में तो ऐसा कोई विशेष वो मतलब नहीं रखता है, वो तो थोड़ा बहुत लॉस ही देंगे। बट यहाँ एक हल्का सा एक एलिमेंट है कि आपको थोड़ा बहुत कहीं प्रॉफिट हो सकता है, शायद हो सकता है। बट
इनको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद में बट इसमें एक चीज और साथ में मैं जोड़ दूंगा कि ये वक्री हुआ है ना, तो 5th हाउस से 4th हाउस को देख रहे हैं, तो 4th हाउस को इनको छोटा डैया था जो 2020 तक जनवरी के, तो इसलिए इनको थोड़ा सा तो रेमेडी मैं इनको भी रिकमेंड करूंगा कि इनको करना चाहिए। उसके बाद में आती है तुला राशि, जो इन तुषार जी की भी राशि है। तुला राशि में शनि अभी राशि से 4th हाउस में चल रहा है, इनको छोटा डैया अभी चल रहा है, तो 4th हाउस में बैठा है तो 10th हाउस को देखेगा, अपना जो भी वर्किंग वगैरह ये सब जो वो सब देखेगा, और इनके 6th हाउस को भी देखेगा, और इनके 4th हाउस में बैठा है तो लगन को भी देखेगा। बट इनको भी क्योंकि ये वक्री होके 3rd हाउस को देखेगा, तो इनको इतना डरने वाली बात नहीं है, बट इनके भी लिए रेमेडीज मैं रिकमेंड करूंगा। इनके देखिए, इनकी मदर, इनका ये जमीन जायदाद जो भी है उन सब में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इनकी जॉब में जो भी काम करते हैं उसमें हल्का फुल्का, बट क्योंकि ये 6th हाउस को देख रहे हैं इसलिए ये हर चीज को ओवर पावर कर पाएंगे, मतलब दे विल मैनेज, somehow they will be in a position to manage, ये कुछ भी करके और चाहे पूजा पाठ करके और मैनेज कर पाएंगे। पर इनको भी अपनी हेल्थ की ध्यान रखना चाहिए, इनको भी अपना जॉब का ध्यान रखना चाहिए, इनको भी अपने मदर का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी तरफ से तुला राशि का है। कुछ सर्टेन एलिमेंट्स रह भी जाएंगे तो बाद में आपके क्वेश्चन आंसर में ऐड कर। उसके बाद में आ जाता है साहब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की बात करें, अभी करते हैं, यस अभी मेरे सामने कुछ क्वेश्चन आया तो अभी करते हैं बात। पर अभी देखिए, सबसे पहले वृश्चिक राशि की बात करें, अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि से ये 3rd हाउस में है, वृश्चिक राशि से ये 3rd हाउस में चल रहा है, तो वन ऑफ द बेस्ट है ये, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ सैटर्न। तो आई विल टेक अ मोमेंट, जिसको भी रेमेडीज जानना है या आज का वो जो स्पेशल प्रदोष व्रत क्या है उसका रेलेवेंस, प्लीज वेट टिल द एंडिंग सो दैट यू कैन नो दैट। ओके, ठीक है, हेलो, आप पापा गो ऑन। हाँ, तो वृश्चिक राशि के 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस तो बेस्ट है, उनका तो बेस्ट पीरियड है। बट क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं, वक्री होने से ये 2nd हाउस को देखेंगे, जो कि 3rd फेज ऑफ 7.5 में काउंट होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 7.5 में 2.5 साल के 3 स्टेंजा होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है जो सर पे होता है, दैट इज व्हेन जब वो शनि आपकी राशि से 12th हाउस में होता है, फर्स्ट फेज, फिर आपकी राशि पे होता है जब वो 2nd फेज, फिर आपकी राशि से नेक्स्ट राशि में होता है वो 3rd फेज होता है। तो मतलब उसके जो 2nd हाउस में राशि से, तो उसमें अगर अपन करें बात तो बेस्ट है, बट वक्री होने से ये 2nd हाउस को देखेगा, तो 7.5 का इनके ऊपर थोड़ा सा असर आएगा, बट इतना इनके लिए कोई विशेष देखने की जरूरत नहीं है। 7वीं दृष्टि से भाग्य जरूर देख रहे हैं, तो अपने स्टेटस को तो जरूर संभालना चाहिए। उनकी डीलिंग्स जिनसे है, पार्टनरशिप जिनसे है, उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पर कुछ गड़बड़ घोटाला हो सकता है, जहां आपकी कोई इंसल्ट और ऐसे कुछ प्रॉब्लम में खड़ा कर दे। और उसके बाद में वृश्चिक राशि का 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये 5th को भी देख रहे हैं, तो उसका भी कोई विशेष बात नहीं है। तो अगर अपन वृश्चिक राशि की सम अप करें तो यस, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग टाइम, कोई बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं है। पर रेमेडीज तो अगर मैं इस बार बात करूं तो शनि की करीब करीब सबके लिए ही बात होगी अभी,
छोटे छोटे सबके लिए कैप्सूल्स होंगे। एनीवे, तो अपन वृश्चिक राशि में आपको ध्यान रखना है आपके स्टेटस का, पार्टनरशिप का, फ्रेंड्स का और अपने भाइयों का, जो आपके जो भी है। और शनि है तो एक चीज और ध्यान रखने वाली बात, अपने सबऑर्डिनेशन एंड अपने बॉसेस, जो भी आपके वर्कर्स हैं उन सब का भी ध्यान रखिएगा, उनकी डीलिंग्स में ध्यान रखिएगा, उनकी डीलिंग्स में फेयर लीजिएगा, हेल्पिंग। उसके बाद में आ जाती है धनु राशि। धनु राशि के वो सेकंड हाउस में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। वाणी का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, वो धन का घर है वो। अगर शनि धनु राशि किसी की है और वो अगर जन्म कुंडली में शनि सेकंड हाउस में हो तो वो थोड़ा सा वाणी में ही और शी विल नेवर बी ए सॉफ्ट पर्सन। वो बड़े बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे जैसे कोई बहुत, आप समझ गए होंगे मतलब। तो उनको थोड़ा सा अपनी बोल चाल में ध्यान रखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है क्योंकि 8th हाउस को वो एस्पेक्ट करेगा, जॉब को भी एस्पेक्ट करेगा तो उसको भी ध्यान रखना है। बट मेन चीज है उनकी बोलचाल, उनका बिहेवियर, उनका लाइफ स्टाइल, कि किसी को तकलीफ नहीं हो, उसमें चलना चाहिए। यही थर्ड दृष्टि से 4th हाउस को भी देखेगा तो मदर और प्रॉपर्टीज और हैप्पीनेस के ये जो एरियाज हैं इनमें इनके धनु के, और वैसे भी धनु के अभी थर्ड फेज की 7.5 भी चल रही है, तो इसलिए इनके 7.5 भी चल रही है। इसमें और भी बता दूं आपको कि जिनकी राशियों में ये 7.5 या ढैया या छोटा ढैया है और उसमें अगर शनि की महादशा है या शनि की दशा के अंदर अंतरदशा शनि की है तो उन पे इफेक्ट ज्यादा होगा। ये वेरी करेगा इंडिविजुअल हॉरोस्कोप कि आपकी राशि कौन सी है। ये भी वेरी करेगा कि तो उस लग्न चार्ट में शनि बैठे कहाँ है, पर मैं तो आपको राशि वाइज बता रहा हूँ इसलिए। उसके बाद मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में तो शनि खुद अभी चल ही रहे हैं, तो इनके राशि में ही विराजमान है। तो पहले तो 7th को देखेंगे, तो मकर राशि वालों को अपने पार्टनर, अपनी फैमिली लाइफ, ये वो सब चीज देखनी चाहिए। एक जिसमें इनकी थर्ड दृष्टि से अगर अपन बात करें, एक और बीच में क्योंकि वहीं बैठे हैं तो अपनी हेल्थ और अपने पार्टनर दोनों की हेल्थ को भी देखना है। और अगर इनकी वो शनि की थर्ड दृष्टि से देखें तो थर्ड हाउस को वो देख रहे हैं, तो वहां पर उनके खिलाफ कोई ये केस वेस कोई खड़ा नहीं हो, डिपार्टमेंटल या अदरवाइज जो भी ये होते हैं ना, जिसमें कि फंस जाने के चांसेस बन जाते हैं, फंस जाने के चांसेस बन जाते हैं। और फिर तो जॉब वाले घर को भी ये देख रहे हैं, 10th हाउस को भी 10th दृष्टि से, इसलिए उनको तो दे आर रिक्वायर्ड टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दिस जब तक वक्री है। और वक्री के कारण ये 12th हाउस को भी देख रहे हैं इनके, तो वो भी कोई अच्छा नहीं है। मतलब मैंने तो आपके वो पार्टनर और फैमिली लाइफ और उसको कर ही दिया कवर उसमें, क्योंकि वो तो सीधी 7th दृष्टि इज मोर इफेक्टिव। हालांकि शनि की 3rd and 10th भी उतनी इफेक्टिव है, बट फिर भी। अब आता है कुंभ राशि की बात। कुंभ राशि के ये फर्स्ट फेज में चल रहा है। शनि की 7.5 में ऐसा मेरा अनुभव है, किताबों में भी लिखा है, लॉजिक भी है, और हमारा बैकअप में तो वही है भाई, जो हमने पढ़ा, सीखा, समझा और फिर उसको परखा। तो उसके अंदर अगर अपन बात करें तो जो फर्स्ट फेज होता है वो दिमाग पे, ब्रेन, तो देख लीजिए ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे मकर राशि का मैंने कहा कि वो सेकंड फेज पे चल रहा है, तो वो पेट भराई होता है, उसमें कुछ पैसे भी आते हैं, दे गेट सर्टेन प्रॉफिट्स, मतलब अर्निंग बढ़ती है उनकी। बाकी दूसरी प्रॉब्लम तो शनि की आती है, बट प्रॉफिट्स बढ़ती है। और फिर एक जो मैंने अभी आपसे कहा धनु राशि का, तो वो है थर्ड फेज में, तो वहां पर क्या होता है, टांगों पे आता है, लेग्स पे आता है, लोअर एब्डोमेन और उसके नीचे के पोर्शन पे आ रहा है, तो वो टांगे तोड़ता है। वो टांगे तोड़ने का मतलब कोई फ्रैक्चर से मेरा मतलब नहीं है, बट यू आर पुट टू ए टास्क, प्रॉब्लम,
तो वो ध्यान रखें। तो अब आइए कुंभ राशि की बात करें। कुंभ राशि के फर्स्ट पेज में उनको तो फुल रेमेडीज में रिकमेंड करूंगा, उनको तो फुल रेमेडीज में रिकमेंड करूंगा। उनका एक ही चीज है कि वो एस्पेक्ट कर रहे हैं 6th हाउस को, तो उनके शत्रु होंगे अभी इस एरिया में बहुत, उनके भी खिलाफ वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, डिसेप्टिव प्रॉब्लम्स, मतलब लोग आज चुपचाप चोरी छुपे उनके खिलाफ खड़े हो जाए, तो वहां उनको मैनेज सारा का सारा करना है, वहां उनको सारा का सारा करना है। वो 2nd हाउस धन के घर को भी देखेंगे ये कुंभ राशि वालों के लिए शनि, तो उस मैनेज देयर फंड्स आल्सो, मतलब अभी कोई अननेसेसरी कोई नया खर्चा या नया इनिशिएशन या नया स्टार्टअप का रिस्क वो नहीं लें, क्योंकि यही नहीं है 7.5 तो अभी लंबी चलेगी ना, फर्स्ट फेज में अभी एंटर हुए, और वो आपको मतलब ये आपको क्या इंस्पायर कर सकते हैं, मतलब लोग कुछ कहेंगे क्योंकि वो बकरी होने से 11th हाउस को देख रहा है, हाउस ऑफ प्रॉफिट को, पीपल मे अप्रोच यू, अरे यू स्टार्ट विद दिस न्यू वर्क और वेन्यू जो भी मतलब दे कैन कम एंड टेल यू, बट प्लीज डोंट टेक दैट रिस्क, प्लीज डोंट टेक दैट रिस्क। आपकी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, स्पेशली मैरिड लाइफ, उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो 12th हाउस जो कि हाउस ऑफ बेडरूम प्लेजर या हाउस ऑफ फैमिली, तो ये कुंभ राशि के। अब मीन राशि पे आई। मीन राशि के लिए अगर वैसे देखा जाए तो 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, मैंने अभी कहा था 3rd, 6th और 11th हाउस में अगर ट्रांजिट करे, 3rd, 6th और 11th हाउस में अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर शनि बैठा हो तो फिर वो बल्ले बल्ले वाली बात है, बेस्ट पोजीशन, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन फॉर सैटर्न। पर ये वही बात है, वक्री हुआ है तो वेरी कंफ्यूजिंग, पीछे ये 10वें को देखेगा तो इनकी जॉब में ध्यान रखने वाली बात है कि थोड़ा बहुत तो कुछ दिक्कत आ सकती है, और 11th हाउस में ही बैठ के ये वहां पर आपके शरीर को भी देखेगा, तो वो भी हेल्थ वाइज ध्यान रखने वाली बात है। और 5th हाउस को देखेगा तो वहाँ संतान भी है, आपका आउटपुट परफॉर्मेंस भी है, वॉट एवर यू डू, मतलब आपकी सोच में यू मे बिकम वेरी नेगेटिव ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ रिट्रोग्रेशन, मतलब आपके अंदर बहुत फालतू के विचार आने लग जाए, विचार और ये सब, तो इस तरीके से ये मीन राशि का हो गया। अब मेरे हिसाब से जोडिएक का सब हो गया, अब क्या करना है तुषार जी, बोलिए। पापा सबसे पहले वी विल शेयर द रेमेडीज फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन, एंड देन आप वो प्रदोष का बता सकते हैं क्विकली, ये बता के देन वी ओपन फॉर क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले रेमेडीज की बात करें। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, So on Wednesday, I would be taking a session, same, Shani Vakri, Saturn retrograde, but what is the lesson we need to learn? It's going to be a spiritual aspect of retrograde Saturn. यस, तो रेमेडीज की बात कर ले। आपको मैं एक वो रेमेडीज की बात में बताना चाहूंगा। देखिए, हर राशि की अलग अलग रेमेडीज होती है, एक अभी सुनिएगा पहले, हर राशि की अलग अलग रेमेडीज होती है, और वो मेनली डिपेंड किस पे करती है, शनि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेमेडीज की बात कर रहा हूं अभी इन जनरल। वो करती है कि आपकी राशि का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है। जैसे मेष की बात करेंगे तो मंगल, मंगल मतलब हनुमान और शिव, उनकी आराधना तो करनी चाहिए। जैसे अपन वृषभ की बात करें या तुला की बात करें तो उनका शुक्र और वो सब होने से वहां पर मातेश्वरी, दुर्गा, जगदम्बा, करणी माता, महामाया, इन सब की आराधना होगी होगी। वैसे ही अगर मान लो मिथुन और कन्या की बात करें तो बुध है, तो बुध का कौन मालिक, बुध के भगवान गणेश, तो वहां पर वो आता है। और ये मंगल वाले में जैसे
मंगल वाले में जैसे मेष राशि की बात कर रहा था ना मैं, तो इसमें ये भगवान कार्तिकेय भी जुड़ते हैं, युवा कुमार कार्तिकेय भी जुड़ते हैं। एनीवे, तो एक तो वो है, और अब अपन स्पेसिफिक शनि की बात कर लेते हैं। देखिए, शनि बेसिकली किस लिए है? प्लेनेट फॉर पनिशमेंट, डिसिप्लिन, जो इस ब्रह्मांड में ये सब रखने के लिए कि भाई एक सिस्टम चलता रहे, नया आदमी सताए किसी को, मतलब एक बैलेंस करने के लिए एक आदमी को ऑथोरिटी मिली भगवान शिव की कृपा से कि भाई तू ठीक है, you are given this duty कि you will maintain the discipline, you will see that nobody is tortured or harassed by anybody। इस तरीके से ये शनि देव के लिए। तो अब इनकी रेमेडीज क्या होगी? इनकी रेमेडीज होगी, सर्व लोगों को इतना ज्यादा आप सर्विस दीजिए इस कोरोना काल में, तो आप हर तरह का कीजिए। और दान की बात करें, सहायता की बात करें, तो अन्नदान से बड़ा कुछ नहीं, तो अन्नदान कीजिए। अच्छा, अब अन्नदान में एक चीज और जुड़ी हुई है इन शनिदेव के साथ। शनिदेव का मैं हंस के हमेशा कहता हूँ कि शनि का रंग काला, जैसे मेरा भी थोड़ा बहुत रंग काला, तो यूं शनिदेव काले रंग से जुड़े हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी रेमेडी मैं हमेशा हर एक को, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको बताता हूँ, पिपलिका। पिपलिका इज व्हाट? ब्लैक एंड्स, मतलब ये जो चींटियां लैक्स ऑफ नंबर होता है, तो उनको अगर आप फीड करेंगे, वो भी मैंने आपसे कहा कि ब्लैक चीजें, जैसे काला तिल ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, काली छिलके वाली उड़द ले लीजिए, और बाजरी ले लीजिए, शक्कर, हर उपाय में शक्कर मीठा जरूर ऐड कीजिए, ये ले लीजिए। भिखारियों को मदद कीजिए, आपसे जो नीचे हैं मनी वाइज, अर्निंग वाइज, उम्र वाइज, जिस भी तरीके से, उन सब को आप मदद कीजिए, हर वे में कीजिए। मैंने आपको कहा है जो मैक्सिमम है अन्नदान है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी किसी को कोई, जैसे आपको एक बात बताऊं, एक और भी बहुत बड़ा उपाय है, उसको कहते हैं अपन कन्यादान। शादियों में मदद कर दीजिए किसी गरीब की बेटी की, डबल फायदा होगा। शनि तो है ही है, और मातेश्वरी दुर्गा भी आप पे कृपा करके शनि से बचाएंगे। अब जो ये मैंने अन्नदान में सबसे पहले चींटियों का दाना, फिर आपको मैंने ये कहा कि भाई भिखारी और इन सबको। अब देखिए, एक इसमें बीच में एक कथा या इतिहास है, वो ये है कि भगवान शनि ने किन किन को कहा, प्लेनेट शनि ने किन किन को कहा कि भाई हम ऑथोरिटी। तो शनि के लॉर्ड कौन है? पहले तो महादेव, और दूसरे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी को भी इन्होंने कहा था, क्योंकि वो लंका में जब रावण ने उनको दबा के सब ग्रहों को पकड़ लिया था, तो यही छुड़ा के लाए थे शनि को, जब वो युद्ध में हारे और मेघनाथ का वो जो वध हुआ था। इट्स ए लॉन्ग, वो आप तुषार विल टेल यू ऑल दिस। तो उसके बाद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये दो भगवान है, और शनि उन सब से तो होता ही है जिनसे कि आप सर्विस करते हो, तो उन सब से शनि प्लीज होते हैं, उनसे वो फील करते हैं कि मेरे को इनको मदद करनी। एक और प्रसंग है, एक ऋषि कुमार जिनके कि माता पिता को शनि के कारण वो ढैये के पीरियड में बहुत भुगतना पड़ा था, तो बहुत वो घूमते रहे, माँ बाप चले गए, तो वो घूमते घूमते उनको भगवान नारद मिले, तो उन्होंने कहा भाई ये शनि की करामात है। फिर उन्होंने शनि का वो किया, उन्होंने कि भाई अपनी तपस्या इतनी बढ़ाई, उन्होंने शनि को नीचे गिराया उन्होंने ऊपर से। तो शनि के वो ये जो टांग टूटने वाला ना, ये भी उसी में जुड़ा हुआ है। कई जगह कई रेफरेंसेस हैं शास्त्रों में और पुस्तकों में, बुक्स में। तो वो वहां पर उनको उन्होंने वरदान दिया। अब ये जो ऋषि कुमार है, इन्होंने ये जो तपस्या की थी वो पीपल के पेड़ के नीचे की थी, जो इनका नाम हो गया पिपलाद ऋषि।
तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाके सुबह जल चढ़ाइए, शाम को वहां पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उस दीपक में भी पहले सरसों का तेल थोड़ा एक्स्ट्रा ले जाइए। तो वो थोड़ा सा ड्रॉप कीजिए, कहाँ पर? धरती पे, जमीन पे। जड़ों में पूरा मत डालने की जरूरत है, वो सिर्फ धरती से कनेक्टिविटी है वहाँ। तो वो धरती पे थोड़ा सा अर्थ पे डालिए, जो अपना फ्लोर है नीचे उसके मतलब पीपल के, वहां डालिए और वहां रिक्वेस्ट कीजिए कि हे पिपलाद ऋषि, हमें ये शनि से ऐसा ऐसा बचाए, या जो भी आपकी जो मनोकामना हो या वट एवर यू कैन रिक्वेस्ट, जो भी प्रार्थना हो आप कीजिए वहां। एक और है, भगवान कृष्ण को भी इन्होंने वरदान दिया था। विष्णु में भगवान कृष्ण को इन्होंने वरदान दिया था कि कृष्ण भगवान, क्योंकि कृष्ण नाम है ना, तो कृष्ण भगवान को भी ये है, उनकी आराधना करने से भी शनिदेव। तो वहां पर अपन जैसे पीपल के पेड़ की बात कर रहा था मैं, वैसे भी पीपल के नीचे अगर 10-15 मिनट हम जा खड़े होते हैं तो एज ए साइंस स्टूडेंट तो भाई वी गेट मोर ऑक्सीजन, बट अदरवाइज उसमें ब्रह्मा विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान वहां भी हैं, और बरगद के पेड़ में भी ये तीनों भगवान हैं। और तीनों भगवान को अपन एक वर्ड में नाम साथ में, वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश बोलना पड़ता है, अदरवाइज केशवाय नमः भी अगर अपन कहेंगे तो सब आ जाते हैं। तो वहां पर वो जाके भगवान कृष्ण का भी नाम वहां लीजिए, शनिदेव का खुद का नाम लीजिए और रिक्वेस्ट जो भी आपकी कर दीजिए। ये मतलब सारांश ये है। बट एक और भी चीज है जो हमारे यहाँ, जैसे अब 10 जून को शनि जयंती आ रही है, हालांकि उस दिन थर्सडे है, पर फिर भी शनि की जयंती है उस दिन। तो मेरे यहाँ कम से कम 100, मतलब 100 तो मैं नहीं कह सकता, आई कांट से, स्टिल आई हैव गॉट 7-8% रजिस्टर्ड विद मी, जिनकी की वो शनि के जाप और पूजा 23,000 जाप हम करवाते हैं, वो मिनिमम है। अदरवाइज ये कलयुग है, हमें 4 बार हर 3rd मंथ हमें ये जाप रिपीट करना चाहिए। महामृत्युंजय का जाप किया जाता है, एक 2 मिनट और लूंगा तुषार में, कि महामृत्युंजय का जाप किया जाता है हर एक, वेरी पॉपुलरली नोन, छोटा सा हुआ, ऑक्सीजन लेवल नीचे गया और महामृत्युंजय शुरू। देखिए महामृत्युंजय का जाप है व्हेन द पेशेंट और द पर्सन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, जहाँ जान का खतरा है ही। आप हर चीज में जाइए कि ये महामृत्युंजय जाप कैसे, मतलब ये कहाँ से मंत्र बना, तो उसका वो तुषार आपको जब भी कोई होगा उसमें पूछिएगा, वो बताएगी, क्योंकि उसकी भी एक स्टोरी है कि ऋषि कुमार को फिर वो वरदान हुआ और ऐसा करके भगवान शिव और नारद जी उसमें सब इन्वॉल्व हुए, यमराज से बचाया। एनीवे, तो महामृत्युंजय का आई ओनली रिकमेंड व्हेन देयर इज क्रिटिकलिटी ऑफ लाइफ। और ये जो मैंने आपको कहा जाप और पूजा शनि के, नीलांजन समाभासम, इसमें भी क्या बीज मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है। पर नॉर्मली हम लोग वैदिक लोग नहीं होते। वैदिक एक बहुत बड़ी बात है, आजकल वैदिक ब्राह्मण मिलना भी बहुत मुश्किल है। मेरे यहाँ जो ब्राह्मण काम करते हैं, 4 ब्राह्मण्स आई हैव गॉट फॉर ऑल दिस वर्क, उनको जरूर वो वैदिक है। वैदिक वो होते हैं जो मृत्यु वगैरह में काम नहीं करते हैं, और जो एक्चुअली दे फॉलो दिस, जो ब्राह्मण वाला कर्म होता है, उसको नीचे सोना और ये वो सब। एनीवे, तो वो 23,000 जाप करवाने चाहिए, साल में एक बार जरूर करवाने चाहिए। और ये सिर्फ मैं इस वक्रत्व या रिट्रोग्रेशन के साथ ही नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं ये शनि के ढैया, 7.5 या छोटे ढैये के साथ ही नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं शनि की महादशा, अंतरदशा उसके साथ ही नहीं जोड़ रहा हूँ, बल्कि लगन के अंदर भी शनि अगर कमजोर है, नीच का है या गलत जगह प्लेस्ड है, तो जरूर जरूर, मैंने अभी आपको जो 3 इफेक्ट, जो मेजर इफेक्ट्स बताए थे, उनमें से कोई घर कवर कर रहा है। जैसे 7th हाउस में शनि है तो उसको जीवन भर शनि की करनी पड़ेगी पूजा, और जो भी 12th हाउस में अगर शनि है उनकी मतलब लग्न चार्ट में, तो
तो करना ही चाहिए। 8th हाउस में शनि है, मेरी तरफ से ये करना चाहिए, हालांकि लॉन्गेविटी देता है वो, बट स्टिल आई रिकमेंड कि वहां भी उनको उपाय करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये है। और फिर तो अभी अपन क्वेश्चन आंसर में कुछ कर लेंगे। अब आ जाते हैं अपन, तुषार जी, इज दैट ओके? Yes, Papa. It's good. आगे चलते, अब अपन आते हैं प्रदोष व्रत की बात। देखिए, हर देवता का जैसे हमारी तिथि है ना, पहली तिथि से लेके 15, पहला देखिए अपन शुरू करते हैं अमावस, जैसे मान लो कल अमावस थी, तो वहां से फिर 1 2 3 यूं 15 करते हुए पूर्णिमा, फिर वहां से 15 करते हुए अमावस। और इसकी भी एक स्टोरी है कि वो चंद्रमा से ये बना कि वो 15 दिन मरते हैं और 15 दिन जीते हैं, तो उससे ये अपने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बने। वो भी मैं तुषार पे बहुत काम डाल रहा हूँ, तुषार विल टेल यू कि व्हाट इज फॉर, क्योंकि वो बहुत फिर टाइम, फिर तो 3-4 घंटे हो जाने। और तो आगे चलते हैं अपन। यस, तो उसमें सोम प्रदोष नहीं, पहले प्रदोष की बात। तो जो त्रयोदशी तिथि होती है वो भगवान शिव के साथ जुड़ी। तो जो प्रदोष व्रत है, जिसमें देखिए एक और याद रखिएगा, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों भगवान हैं और तीनों को हम पूजते हैं। पर देखिए नंबर 1 पे अगर है तो है भगवान शिव स्वयंभू, अपने आप में प्रकट। इनके न मदर फादर का अपने को पता है, न कैसे क्या, ये अपने आप प्रकट हुए भगवान शिव। तो भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं। तो प्रदोष व्रत और एक होती है एकादशी, ये व्रतों में सबसे ऊपर के व्रत माने जाते हैं, सबसे ऊपर के, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु से जुड़ती है। तो प्रदोष व्रत, त्रयोदशी नॉर्मली कृष्ण पक्ष की भी और शुक्ल पक्ष की, और जैसे चंद्रमा यहाँ ज्यादा पावरफुल होता है, जो भी भगवान शिव से जुड़े हुए मुकुटमयी है, उनके जटामयी है, तो इसलिए वो प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आगे आज क्या है, सोम प्रदोष। तो क्या बात है, मतलब प्रदोष भी और सोमवार भी, जो कि चंद्रमा से जुड़ा हुआ वार है। भगवान शिव का भी सोमवार ही है, बट चंद्रमा का भी सोमाय नमः। हम जैसे आज मंत्र बोलते हैं ना, तो एंड में हम बोलते हैं सोमाय नमः। रात को हमें, जैसे पूर्णिमा को हम करते हैं, वैसे ही आज की डेट में भी हमें रात को चंद्रमा के दर्शन करके सोमाय नमः, चंद्रमाय नमः, चंद्रमा से नमः, बहुत तरह के वो है, तो किया जा सकता है। तो सोम प्रदोष, प्रदोष में ही एक और बता देता हूँ, 3 प्रदोष बहुत इंपॉर्टेंट। सोम प्रदोष, उसके बाद में गुरु, नहीं यूं अगर प्रायोरिटीज में देखो तो फिर शनि प्रदोष और फिर गुरु प्रदोष। बाकी प्रदोष सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, और प्रदोष बहुत इंपॉर्टेंट मैंने तो आपको बता दिया। तो सोम प्रदोष है, तो आज कितनी अच्छी चीज है। अब इससे अपने को क्या महात्म है या क्या महात्म है, क्या इसका फायदा है। से स्वार्थी लोग हैं, मैं तो हूँ एटलीस्ट, कि भाई फायदे बिना हम क्या करें। मेरे स्टेटस पे मैं शाम को अभी प्रदोष व्रत की बस अब मेरे को निपटा के फिर 9 बजे से पहले पहले मुझे प्रदोष की पूजा करनी है। 45 मिनट्स सनसेट के, मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट से पहले से ये शुरू होता है प्रदोष काल, और 45 मिनट्स बाद में जाता है। जहां मैं बैठा हूँ आज जोधपुर में, राजस्थान में, तो वहां पर ये 9 बजे तक है, और मैं सोचता हूँ कि 8 बजे तक पूरा होगा तो मेरे तो हो जाएगा, फिर आप सब भी कीजिएगा। तो प्रदोष व्रत में ये इंपॉर्टेंस है। और इसमें अब देखिए कितनी चीज कवर होगी आज। भगवान शिव, तो भगवान शिव की आराधना से क्या नहीं मिलता, संतान, संपत्ति, सौभाग्य, धन, और आप शिव जी से जुड़े हुए तो सभी कुछ है। और शिव बचाएगा भी शिव,
मतलब हेल्थ का भी बहुत बड़ा, अगर शिव आराधना की आपने तो 2 जगह तो बहुत फायदा होता है और उसमें सब कवर हो जाता है, दैट इज मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। आज चंद्रमा का भी दिन है, तो चंद्रमा इज ए प्राइमरी प्लेनेट, प्राथमिक ग्रह है, प्राइमरी प्लेनेट फॉर योर मेंटल माइंड की। जब भी बात होती है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी के कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स है, तो उसकी कुंडली में तो हम देखते ही हैं कि भाई कौन सा ग्रह माइंड को देख रहा है, मतलब माइंड का मतलब शरीर को देख रहा है और शरीर में भी माइंड को देख रहा है। बट जनरल वे में हम चंद्रमा और साथ में देखते हैं। जैसे सूर्य को हम फिजिकल कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर हम वहां भी देखते हैं कि भाई कौन सा, वही फर्स्ट हाउस से जुड़ने वाला या 8th हाउस से जुड़ने वाला, वो फिजिकल फिटनेस की बात करता है, बट जनरल वे में सूर्य को देखते हैं। तो आज जितनी भी मानसिक शांति की बात करें, मेंटल कंफर्ट की बात करें, क्लैरिटी ऑफ माइंड की बात करें, क्लैरिटी ऑफ विजन, मतलब आपको समझ में आए, डिसीजन मेकिंग, स्टेबिलिटी इन द माइंड, ये सब के लिए सोमवार उत्कृष्ट है, मतलब एक्सेलेंट। और उसमें फिर प्रदोष, तो वो शिव जी से सब जुड़ गया। अब तो क्या चीज रह गई, आपको जो मांगना है मांग लीजिए, वो सब चीज इसमें कवर है। शिव जी से कोई चीज छोटी तो होती, मतलब शिव तो सब चीज को मैनेज कर सकते हैं। और चंद्रमा आज सोमवार है, इसलिए ये इसका मेन रिलेवेंस है कि वाई, मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोम प्रदोष। प्रदोष की एक अपनी है, बट ये सोम प्रदोष की ये स्पेशल है। तो आप आज सोम प्रदोष में अभी 9 बजे से, या जो भी आपका, मैंने टाइमिंग्स वहाँ, आप आजकल तो बाबा गूगल जी में देख लीजिए, मैं तो पंचांग में देखता हूँ। और अब तुषार बोलिए, और क्या बोलना है? I think that is it. अब अगर